All right. Previous class we have seen about the photon, its energy, momentum, and other points. Today we are going to see the photoelectric effect. Photoelectric effect means when the photons of suitable frequency falls on the metal plate, then electrons are emitted, and that phenomena is called photoelectric effect. Already we have seen third method of emission of electrons. Suitable frequency radiation जब पड़ता है मेटल प्लेट के ऊपर तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं. That is called photoelectric effect. Hertz was the first scientist to notice this when he was producing the electromagnetic wave. When he exposed this setup to the ultraviolet rays, then he got more electromagnetic waves. Then he mentioned that something is happening when we are exposing my setup, metal plates which are producing the electromagnetic waves to the ultraviolet rays, we are getting more EM waves. In other words, we are getting more electrons jumping from one plate to other plate. Yeah, so more electrons. Then there is the radiation of EM waves. So he was the first to notice, but he could not give much information. Later on, other two scientists, Hallweg and Lennox, they did carry out the study in this field and came out with the concept of threshold frequency, which depends upon the nature of material. उन्होंने बताया कि material of emitter plate, उन्होंने बताया कि एक certain frequency के नीचे emission नहीं होता. Electrons are not emitted for a particular plate. So threshold is that minimum frequency below which there is no photoelectric phenomena taking place. Okay, or they also noticed that some alkali metals like sodium, potassium, cesium, etc. are sensitive to the visible light. अगर उनको visible light से expose किया तो उसमें से electrons बाहर निकलते हैं. Sunlight से ही they are producing the photoelectric effect phenomena. Electrons in this case are called photoelectrons, and this phenomena is called photoelectric effect. Electrons बाहर निकलते हैं, उनको photoelectrons बोलते हैं, because they are coming out due to the help of photons. Otherwise, they are same electrons. है ना? And intensity in this case, intensity का मतलब यहाँ पर in this experiment, in their experiment, intensity means more number of photons means more intensity. Intensity is directly proportional to number of photons. अगर हमें intensity बढ़ानी है तो photons बढ़ाने पड़ेंगे, which depends upon the power of the source. या फिर point source के लिए source को अगर पास में लाएंगे तो intensity increase होती है 1/r square से. Inverse square law follow करती है intensity for the point source. Because suppose point source यहाँ पे and we take the sphere of radius r, इसकी पावर p है तो यहाँ पे इंटेंसिटी पड़ेगी, उनके ऊपर फोटॉन्स पड़ेंगे. तो इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया. एरिया इज 4πr स्क्वायर. इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. अगर हमने छोटा स्फीयर लिया तो ज्यादा सरफेस पे ज्यादा फोटॉन्स पड़ेंगे. ठीक है, कम सरफेस पे सेम फोटॉन्स पड़ेंगे तो इंटेंसिटी मोर हो जाएगी. छोटा स्फीयर लेने से intensity on the surface will be more because it is I is equal to power upon 4πr square. हमने रेडियस कम की तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी सरफेस के ऊपर. Got it? Now we are going to see the experimental study of photoelectric effect. Photoelectric effect की experimental study. तो इन्होंने लेनार्ड एंड हॉलवेक ने एक evacuated glass tube ली. यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो है, ट्रांसपेरेंट विंडो, जहाँ से लाइट सोर्स से लाइट आएगी और उस पे फोटोसेंसिटिव प्लेट which is called cathode also, उस पे it will fall onto that and electrons will be emitted which will move towards the anode, which will be generally kept positive with the help of commutator and battery of certain voltage.
ये क्या है, कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर से हम ए को पॉजिटिव भी कर सकते हैं, ए को नेगेटिव भी कर सकते हैं, इसको प्लस और माइनस दोनों कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग द कनेक्शन हियर, इसको इधर या फिर इसको इधर कनेक्ट कर सकते हैं, इसको इधर। और यहाँ पर क्या है, तो कम्यूटेटर इज चेंज द पोलैरिटी ऑफ ए एंड सी। ये माइक्रो अमीटर है because electrons are less in number in this case as compared to conductors, as compared to the current due to conductors है ना। तो इसीलिए माइक्रो एमीटर विल बी वेरी सेंसिटिव एमीटर। और ये वोल्ट मीटर है, और ये आपकी बैटरी है, और ये रियोस्टेट है जिससे हम बैटरी का वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। ये RH है, इसको इधर उधर शिफ्ट करके इसका वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। दैट V, whatever voltage we need, we can apply between the cathode and anode। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको C is emitter, A is collector, C cathode है, उसको emitter बोलते हैं because it emits the electrons। A collector है, उसको cathode बोलते हैं, जनरली पॉजिटिव रहता है ये। ठीक है, कम्यूटेटर टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ C and A, इनकी प्लस माइनस चेंज कर सकते हैं with the help of commutator without changing the connections of battery। Emission of electrons make the current to flow in the circuit। PEC, we will be using the term for photoelectric current, and PEE, we will using the term for photoelectric effect। Light of different frequencies can be used by putting the appropriate filters in the path of light। है ना, हमें एक मल्टी फ्रीक्वेंसी का सोर्स है, उसके सामने एक फिल्टर पुट कर देंगे। सपोज रेड कलर हमें चाहिए तो रेड कलर अलाउ करेगा, बाकी को फिल्टर आउट कर देगा। ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर को अलाउ करेगा, बाकी को फिल्टर आउट कर देगा। तो बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द कलर, तो वी कैन यूज द फिल्टर्स टू गेट द पर्टिकुलर कलर, इन अदर वर्ड्स टू गेट द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरीड बाय चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द मीटर। इंटेंसिटी का अभी हमने डिस्कस किया, लाइट सोर्स का डिस्टेंस चेंज करो या फिर चेंज द पावर और change the power of the source। ठीक है, तो these 2 points we are going to change for different experiments। सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑन द फोटोलिटिक करंट। अगर हमने यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटोलिटिक करंट पे क्या इफेक्ट होगा। इंटेंसिटी बढ़ाई मतलब फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, तो करंट भी बढ़ेगा, है ना। तो व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी करंट गोज अप, ऐसे ग्राफ आएगा, डायरेक्ट लीनियर रिलेशन। कलेक्टर ए इज केप्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सी, ए को हम पॉजिटिव रखेंगे, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल कांस्टेंट। व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज फोटो करंट इंक्रीजेस। पीसी को हम फोटो करंट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, फोटो करंट। linear, more photons, more electrons, more current। Next one is effect potential on photoelectric current। पोटेंशियल, ये इनके बीच का जो पोटेंशियल है फोटोइलेक्ट्रिक करंट को कैसे इफेक्ट करेगा। पर हम एक्सपेरिमेंट में पहले प्लेट ए को पॉजिटिव रखना है इसको, एंड प्लेट सी को एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से इल्यूमिनेट करना है, एंड इंटेंसिटी I1 पर एक इंटेंसिटी हमने I1 ले ली, उसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी I1 इंटेंसिटी पे हमने क्या किया, धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाया, इसका पोटेंशियल बढ़ाया पॉजिटिव, इसको मोर एंड मोर पॉजिटिव किया। तो ओके, उससे पहले हमने पोटेंशियल नहीं लगाया, बैटरी को ओपन कर दो, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, बट देयर विल बी सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो पहुंच जाएंगे अपने आप, तो यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से ये
ये टर्मिनल यहाँ कनेक्ट है, तो ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। देयर विल बी सर्टेन करंट यहाँ पे व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, ये जीरो है देखो, तो करंट ऊपर दिखाया हमने इस एक्सिस पे, फोटो करंट, एंड यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इतना करंट फ्लो हो रहा है, फिर जैसे जैसे हमने इसको बैटरी को ऑन कर स्विच ऑन कर दिया और इसकी पॉजिटिविटी बढ़ाई, तो करंट बढ़ेगा, बाद में सैचुरेट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन में कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। तो अभी हम फिर से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, करंट वापस जीरो आ जाएगा। अभी कम्यूटेटर से हम पोलैरिटी चेंज करते हैं, अभी इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो ये माइनस अभी धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड होंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, फिर बाउंस बैक भी हो जाएगा। तो जब फास्ट इलेक्ट्रॉन्स दूसरी प्लेट पे नहीं पहुंच रहे, तो धीरे धीरे करंट डिक्रीज होकर जीरो आ जाएगा, और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे करंट जीरो होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। फिर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, सपोज हमने अभी इसकी पावर बढ़ा दी या पास में ले आए, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट यार इंटेंसिटी पे एक्सपेरिमेंट किया, वो भी करंट सैचुरेशन करंट तो बढ़ गया, बट इधर कट ऑफ पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। फिर फर्दर आया इंटेंसिटी पर, फिर सैचुरेशन करंट बढ़ा, बट कट ऑफ पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। तो अगर फिक्स फ्रीक्वेंसी है तो कट ऑफ पोटेंशियल तो चेंज नहीं होता है, इट इज सेम, बट इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है। दैट्स व्हाट वाज द कंक्लूजन ड्रॉन। नाउ वी अप्लाई द, अच्छा ये कट ऑफ पोटेंशियल की डेफिनेशन देखो यहाँ पर। नाउ वी अप्लाई द नेगेटिव पोटेंशियल to A with respect to C, increasing it gradually. Only most energetic electrons are able to reach to the collector, and finally photoelectric current becomes zero. धीरे धीरे इसको हमने बढ़ाया तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होकर जीरो आ गया। तो कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, तो इट इज आल्सो डिफाइंड विद द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल फॉर विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। ये भी मिनिमम वर्ड से स्टार्ट होगा, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिसके लिए फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, ठीक है। अभी आगे देखेंगे व्हेन फोटो करंट बिकम जीरो, व्हेन फोटो करंट बिकम जीरो, एक मिनट, become zero, then cutoff potential is sufficient to repel even the most energetic photoelectrons. देखो ये कट ऑफ पोटेंशियल क्या करता है, सबसे फास्ट है उसको भी रोक देगा। तो क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q इंटू वी, क्यू की जगह E लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दैट केस Ke max कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जो जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है उसको टारगेट करेंगे, कम एनर्जी वाले तो पहले रुक जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे Q की जगह E आ जाएगा, और यहाँ पे V नॉट, दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, E V नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, तो बाद में फिर से वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस चला जाएगा फिर ये, ठीक है। This relation is useful. Ke max is equal to EV naught, and Ke max can be written half mv max square is equal to EV naught. M is the mass of the electron, electron की बात हो रही है। V max is the speed of the most energetic electron, जो outermost orbit से निकलते हैं, they are the most energetic electron, ठीक है। और वही वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, मतलब वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट किए होंगे इलेक्ट्रॉन्स, दे विल बी द मोस्ट एनर्जेटिक, और विदाउट कोलाइडिंग दे विल कम आउट, देन दे विल बी मोस्ट एनर्जेटिक, ठीक है। फिर हमने हायर इंटेंसिटी पे एक्सपेरिमेंट किया, तो कट ऑफ पोटेंशियल तो चेंज नहीं हुआ, बट सैचुरेशन करंट बढ़ता गया, फोटोइलेक्ट्रिक सैचुरेशन करंट गोज अप। कंक्लूजन ये देखो,
for given frequency of incident radiation, stopping potential is independent of intensity. इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. जब फ्रीक्वेंसी फिक्स है, ये सभी लाइन ऊपर जो है डिफरेंट रहेंगी, नीचे एक साथ ज्वाइन होती. Got it? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता. Why it is not? Big experiment says so. Later on, Einstein give the equation. Then we'll see further. This is just experimental conclusion drawn. Later on, equations will also be there given by Einstein. And next one is the effect of frequency of incident radiation. अभी frequency change करेंगे and on the stopping potential. Stopping potential, how it is changing, we'll see by changing the frequency, and intensity will be kept constant. तो यहाँ पे photoelectric current है, यहाँ पे potential difference है, intensity constant कर दी, frequency बढ़ाई, nu1 है, ये nu2 है, ये nu3 है, nu3 greater than nu2 greater than nu1. So intensity is kept constant, frequency is increased. The stopping potential is more for the higher frequency. फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें ज्यादा है. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर द हायर फ्रीक्वेंसी एंड इन हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बट फोटो करंट रिमेन्स कांस्टेंट. बट फोटो करंट रिमेन्स कांस्टेंट. तो फोटो करंट की लाइन देखेंगे हम, बट फोटो करंट तो फोटो करंट कांस्टेंट है. जब इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो इधर लाइन कॉमन लाइन आ रही, सिंगल पॉइंट है ना. जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो यहाँ पे एक सिंगल ग्राफ ज्वाइनिंग, ग्राफ्स और ज्वाइनिंग टुगेदर. जब इंटेंसिटी कांस्टेंट होते यहाँ पे ज्वाइन होते, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होते तो नीचे ज्वाइन होते ग्राफ एक साथ. ये लिखा हमने, फोटो करंट रिमेन्स कांस्टेंट. फोटो करंट और सैचुरेशन करंट रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे हम देखो, वी कैन जस्ट इजीली रिमेम्बर. ओके, दिस पॉइंट देखते हैं. हाँ, देखो ये पॉइंट व्हाई इट इज सो, इसको हम ओके अभी हम ये पॉइंट हम बाद में आइंस्टाइन इक्वेशन के बाद डिस्कस करेंगे. ओनली थिंग वी कैन रिमेम्बर कि देखो ऐसे रिमेम्बर कर सकते हैं दोनों पॉइंट जो भी मैंने सीखे. कट ऑफ पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है. तो दोनों आई एंड आई सेम है और पोटेंशियल एंड वी, ये दोनों वी दिख रहे हैं, है ना. न्यू को वी जैसा समझ सकते हैं. ये दोनों सिंबल क्लोज है और ये दोनों सिंबल क्लोज है. यहाँ पे क्या है, करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, और ये वी क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी. तो ये दो कंक्लूजन अभी हमने ऊपर सीखे हैं. एंड व्हाई इट इज सो, विल सी द आइंस्टाइन इक्वेशन. ठीक है, तो आगे देखेंगे. अभी ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, हमने देखा कि कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी जो है रिलेटेड है. तो प्योरली इसका और इसका ग्राफ ड्रा करते हैं अभी. व्हाट ग्राफ वी ड्रॉ, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लो और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F और न्यू जो भी सिंबल लेना है. तो हमने देखा मेटल प्लेट A के लिए जब फ्रीक्वेंसी इतनी है दिस मच, तो कट ऑफ पोटेंशियल इतना लगा. फिर फ्रीक्वेंसी हमने थोड़ी कम की, इतना है तो कट ऑफ पोटेंशियल भी कम हो गया, और फ्रीक्वेंसी कम की और कम हो गया. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए कट ऑफ पोटेंशियल 0 लग रहा है. दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, मेटल प्लेट ए के लिए. फिर बी के लिए भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें भी वही फिर से एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हायर वैल्यू मिली, डिफरेंट मिली, बट ग्राफ्स आर पैरेलल.
लीनियर भी है। तो कंक्लूजन देखते हैं, है ना। ग्राफ में हमें क्या मिला, फ्रीक्वेंसी कम करने से कट ऑफ पोटेंशियल भी, कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी कम करने से कट ऑफ पोटेंशियल भी नीचे आता है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए कट ऑफ पोटेंशियल 0 हो जाता है। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो लीनियर रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, लीनियर रिलेशन है लाइन जैसा। there exists certain minimum cutoff frequency or threshold frequency for which photoelectric current is 0, ये 0 हो गया, नहीं, for which cutoff potential is 0, कटऑफ पोटेंशियल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों ऐसा? इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल के वहीं रुक जाते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर हमने कम की ना, इलेक्ट्रॉन यहीं रुक जाएंगे, हमें नेगेटिव पोटेंशियल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पास एनर्जी कम रहती। इसकी एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी कम हो जाती। दैट वाज नोटिस्ड। स्लोप इज सेम फॉर आवर मेटल, ये पैरेलल है, पैरेलल है तो एंगल सेम है, एंगल सेम है तो स्लोप सेम है। ठीक है, तो यहाँ से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आया। तो इट इज द मिनिमम, ये भी देखो मिनिमम से स्टार्ट हो रही। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच कट ऑफ पोटेंशियल required is 0. No cutoff potential is required because photoelectrons will be just able to come out of the plate, and cathode plate or photosensitive plate, and will not move. तो cutoff potential लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। And below this frequency no photoelectric phenomena takes place. तो उन्होंने लेनॉर्ड एंड हॉलवेक ने नोटिस किया, अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम कर दो तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएंगे, कितनी भी देर तक वेट करो, रेडिएशन कितना भी डालो, electrons will not be coming out below the threshold frequency. So they were there, these were the points noticed by them in their experiment. All right, so further points we are going to discuss in the next class, and Einstein's equation also. Okay.